Anyone? PDB, okay, yes. And we also discussed the default program, right? I think now we have most of the students were regular, so let me start. So good morning, everyone. And the last topic which we have discussed was PDB, a default program where we have read one file, right? Not can all of you confirm that you have the access to SAS now? Okay, let me ask this way. I think most of you have the access now. Anyone who did not have the access, I should ask this way. All right, so I believe with the responses that everyone has the access. So let me also log into the same portal. All right, so I request everyone to log into your SAS Odamid, and you will see this screen. Very good, Aman. All right, so quickly click on SAS Studio. So I do see the people are still logging in. All right. So you can, so you have this view at your end, right? And let me go very precisely. What do you should be having? Okay. This should be the view at your end, right? And then we close it. Manish, I did not get this. Did you take any email IDs last week? I did not end last week. Yes, I requested to someone, but I did not receive any email IDs for the group. Okay. No worries. What I will do, I will. Okay. So I think she might have lost. Let me drop an text to her. Or DSP 48. DSP 48. All right. So this is the view you all should have right now, right? So Manish, don't worry. Everything I will share
So nothing has been missed, right? All right. So yes, Manish, you are not interrupting. You are asking a question. That's okay. All right. So uh, quick walkthrough with the application. So remember, currently you are logged in into SaaS server, right? You are no, so this is not your desktop. The screen which you are seeing, this is not your desktop. This is a, you can consider this as a cloud login, right? So you are logged into SaaS server, and this server is on Linux, not here as usual, not in on Windows. All right, and so if you click over here, like this ODA, you have your own name over here. You will see folder shortcut and you will see files. And this is the home file or the SAS user.v.94 is your desktop, right? So this particular folder would work like your own folder, right? And you need to upload your files over here to read. So in a nutshell, you cannot read file directly from your folder like this local D drive. What you need to do, you need to create this D drive over here. So for example, I want to read a file. Let me open a file. Okay, let me create one. I don't think that I have a small file. And I have saved this file. So I will save this file, let's say on my desktop. I'm giving it a name as ABC. ABC, right? What I need to do, since this file exists, this ABC file exists on my system, I need to first bring that file into the home directory of SAS server. So click over here. Do one thing, please create that particular file, the notepad file. All right, and save it at your desktop or your folder of choice. Done. And now come to your SAS window and click over here on file. Let me know if you are facing any challenge or you are not able to follow. All right.
So once you have reached here, so can you please explain again how to save the file? Okay. So Manish, what do you need to, Mitakshari, what you need to do, open a notepad, create some dummy data points like I did right this such in 25, 5,000, something like that, and save this at your desktop or any folder which you know, right? By giving it any name. I have given it a name as ABC. You can give it your name. All right. Once you save that file on your desktop, the next step is bringing that file on SAS desktop. So इसको ऐसे समझते हैं, जिस तरह से आपका अपना खुद का एक सिस्टम है, वही सिस्टम का रेप्लिका SAS ने आपके लिए इस सर्वर पर क्रिएट किया हुआ है. There you have access to a physical location which is known as home, and you have access to one application which is known as SAS Studio, right? आपको SAS ने दो चीजें दी है, एक आपको एक ड्राइव दी है, होम ड्राइव, और एक एप्लीकेशन दिया है जिसका नाम SAS Studio है आपको काम करने के लिए. So far so good? Okay, sir. Yes, sir. Now since we have the access to this home drive, so this application can only talk to this home drive only. ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इस लोकेशन को जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता. जैसे हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वो हमारे विंडोज को ही जानता है, राइट? अब यहाँ पे मैं जाकर के मिताक्स के सिस्टम को तो नहीं जाकर के एक्सेस कर सकता. उसी तरह से इस सर्वर पे ये सिर्फ मेरी होम ड्राइव को जानता है, बाकी मेरे सिस्टम को नहीं जानता. All right, now once you click over here, this upload icon will become enable. What you need to do, you need to click on this, and this will show you your home address, which is home/jgautam1977. That is your user ID. And what you need to do, you need to choose a file. So go to your desktop and type and open it. Now upload this file. So the file which you have just uploaded, it is on your home drive. It is not being read by SAS Studio. आपने अभी जो फाइल अपलोड की है वो आपने अपने ड्राइव पे सेव की है. SAS Studio को अभी भी नहीं पता कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है. और इसको भी मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये फाइल अभी भी नोटपैड के फॉर्मेट में है, SAS के फॉर्मेट में अभी नहीं कन्वर्ट हुई है, राइट? So far so good? सबका हो गया? All right. So if you want to see your file, you can see over here this abc.txt. Let me delete all these files so that so now your folder, your application will look like this and an abc.txt file. Now if you want to read this file, right, so we have told, so I have told you that the default program is data, right? Give me a second. And okay, before I move on to here, I just quickly let me walk you through with the library. So here you have the libraries. Let me show you. So over here, once you click on this icon,
This will show you the libraries which you have. So work is your, again, work, SAS user and SAS help. This is what I told you. These are the default libraries which you will find in any module of SAS, right? And here web work is another library which you can leverage for your personal use. So again, when I clicked over here, this library is blank, right? So I want to store the notepad right over here. So what I need to write? I need to write the library name web work dot. Now I want to give the name of my data, so I am giving it the name of my data only. So what is the meaning of this particular line? कि मेरे को एक डेटा क्रिएट करना है, वेब वर्क लाइब्रेरी में स्टोर करना है, और उस डेटा सेट का नाम होगा माई डेटा. ऑलराइट. The next step is in file statement. And in file we always write the location of our file. Then we write input, the list of our variable, and then run. A small question, इस ग्रुप में कोई ऐसा है जिसको ये प्रोग्राम पता नहीं है? If yes, please let me know right away so that I can help you. इतना प्रोग्राम सबको मालूम है? Okay, Aman was not present. Can you give Hitesh? Very good. What about you, Manish? Okay, 3. All right. So, oh, right, very good. So let me just give you a brief. So by default, right? Okay. So I'm just starting from scratch again. So every SAS statement starts with a keyword, right? This you all know by now. And data keyword, whenever we use data keyword, the mean or the understanding for SAS is that we need to create a data. ठीक है जी. अगर मैं डेटा लिखता हूँ कीवर्ड, तो उसका मतलब है मेरे को कोई डेटा क्रिएट करना है. अब वो डेटा मैं चाहे तो टेम्पररी लाइब्रेरी जिसका नाम वर्क है वहां पे क्रिएट कर सकता हूँ, या किसी भी लाइब्रेरी में क्रिएट कर सकता हूँ जहां पे मेरे को एक्सेस है. तो वेब वर्क जब मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब मैं वेब वर्क लाइब्रेरी के अंदर ये जो नया डेटा बनने वाला है उसको सेव करना चाहता हूँ. डॉट से हम सेपरेट करते हैं लाइब्रेरी और डेटा को, और माई डेटा मैंने नाम दिया है अपने डेटा को जो मैं अभी क्रिएट करूंगा. अब ये डेटा कहां से क्रिएट करना है? आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल विच इज स्टोर्ड ऑन माई होम ड्राइव. ये डेटा मेरे को मेरे होम ड्राइव पे एक फाइल abc.txt है, उससे क्रिएट करना है. तो उसको मैं इन फाइल स्टेटमेंट से रीड करता हूँ या इन फाइल कीवर्ड से रीड करता हूँ. Right. So what I will do, I will right click on this and will go to properties, and here I will find the location of my data, and I will close this and store and enter this information over here. So आपको अभी दो कीवर्ड मालूम चल गए. डेटा कीवर्ड से तो आपको पता चल गया कि आपको डेटा क्रिएट करना है. इन फाइल कीवर्ड से आपको ये मालूम चल गया किस फाइल से डेटा क्रिएट करना है. ऑलराइट. नाउ द थर्ड कीवर्ड विच इज इनपुट. इनपुट के अंदर we need to define the name of variable. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बाय डिफॉल्ट SAS को एक ही चीज समझ में आती है कि सारा डेटा बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते. तो डिफॉल्ट सेटिंग जिसको बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट SAS
सिर्फ इतना समझता है कि इसको न्यूमेरिक डेटा रीड करना है और डेटा की लेंथ सिर्फ 8 कैरेक्टर ही होगी बाय डिफॉल्ट। इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब सैस के अंदर जो वेरिएबल मेरे को रीड करने हैं वो उनका नाम है, एक तो नाम है नेम, एक है एज, एक सैलरी। राइट, ये कैसे मालूम? ये तो मेरे डेटा के अंदर है, डेटा तो हमने बनाया है ना, तो हमें पता है कि ये डेटा नेम एज एंड सैलरी का है। राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब सैस को हर चीज बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक समझ में आती है, तो फिर इसको ये कैसे बताओ कि जो नेम आने वाला है वो कैरेक्टर है? तो सैस को ये बताने के लिए कि नेम मेरा कैरेक्टर वेरिएबल है, आई नीड टू पुट अ डॉलर सिंबल आफ्टर द वेरिएबल नेम। तो सैस को ये बताने के लिए कि मेरा नेम एक कैरेक्टर वेरिएबल है, उसके बाद मेरे को डॉलर सिंबल यूज करना होगा। आई रिक्वेस्ट दिस कॉलर 01 टू पुट change his or her name. Can I have the name for caller 1? All right, so now this program will understand this name is a character variable, age is a numeric variable by default, salary is a numerical variable by default, right? And run we require just to make sure that this step is completed. रन हमेशा हम हर स्टेप के बाद इसलिए लिखते हैं ताकि वो स्टेप कंप्लीट हो गया, ये बताने के लिए सैस को। ये मैं नो ये कॉलर 1 आईडी किसकी है? अगर आप में से कोई है तो where did you get the in file? So okay, Karthik, to write a comment, there are two type of comment which I told you, that one is starting a single line comment starting with a star, right? Like this, my first program followed by a semicolon. This is single line comment. Aman, I will come to your question. And there are multiple line comment, right? Like this. Like this. And to get the in file is the file which you want to read. Aman, जो फाइल आपको रीड करनी है सैस के अंदर, so what you need to do, you need to go to your file over here and right click and go to properties, and here is the location of that file. All right, so once you submit this program, though it is giving output over here, but go to code again. Let me show you the data in the library. So this, you can see this data in your webwork.library by name of my data. तो प्रोग्राम रन करने के बाद ये डेटा आपका वेब वर्क लाइब्रेरी के अंदर माई डेटा के नाम से सेव हो जाएगा।
Sure. So select this program and run this, or you can press a shortcut key is also shown over there, F3. Done. So now everyone is able to see the output. Okay. Anyone who was not able to run this? देखो शर्म मत करो, ठीक है ना, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, पहली बार किसी से भी नहीं होता। हाँ, तो पूछने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। So I am taking a silence say yes that everyone is able to read it, or they are able to successfully execute their code, right? Now, in the interest of everyone, what I will do, I will run this program from here only. तो अभी मेरे को बार बार जा करके ना ये फाइल अपलोड नहीं करनी, सिर्फ मेरे को तो आपको ट्रेनिंग करानी है। सो आई वांट टू यूज अ लिटिल शॉर्टकट ओवर हियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेटा आपको इसी स्क्रीन पे बना करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा, एक कीवर्ड यूज करूंगा डेटा लाइन, और जो डेटा मेरा इस डेटा को मैं इसी जगह पे, माय डॉटर्स, ओके, अभी मैंने क्या किया कि जो इन फाइल स्टेटमेंट है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया डेटा लाइन से, और उस डेटा को यहीं पर डिफाइन कर दिया। So Aman, to answer to your question, yes, you can write this. तो अभी मैं ये वाला जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार जाकर के आपको ये सर्वर पे जाकर फाइल ना दिखानी पड़े, राइट? तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए भी है कि ताकि मैं आपको डेटा और प्रोग्राम एक ही जगह पे दिखा सकूं, राइट? तो अभी टॉगल करने में फिर क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि सर आपने कहाँ से लिखा, कैसे लिखा। तो नाउ यू हैव द डेटा एंड द प्रोग्राम इन द सेम विंडो। इफ आई रन दिस, इसका नाम हम कर दें डेटा वन, ताकि आपको फर्क मालूम चल जाए। इफ आई सबमिट और रन दिस प्रोग्राम, माई डेटा वन, वेबवर्क लाइब्रेरी में पूरा टेबल वन के आ गया। लाइब्रेरी में भी देख लेते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
So I'm F3 or F8. So, Johnny, we will cover each and every scenario, right? So, please bear with me for today and tomorrow, and you're free to ask any question related to data set because I'm going step by step. There are different scenarios which I will explain during these 2 days so that you can read simple data to messy data. And the reason for using data lines twice, so here in place of मैं इस जगह पे क्या करूँ, इस फिजिकल लोकेशन को इस कीवर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ और इस कीवर्ड को यहीं से रेफरेंस दे रहा हूँ कि देखो डेटा लाइंस ये रही, जो डेटा लाइंस आपको चाहिए वो डेटा लाइंस ये रही। तो हितेश द यूज ऑफ डेटा लाइंस इज कि सो दैट आई कैन शो यू, ये आपके रियल या बोला जाए कि प्रैक्टिकली आपके लिए उतना आपके लिए शायरी का भी काम आई है डेटा लाइन, बट ट्रेनर्स के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी यूजफुल कि मैं आपको ये फाइल के अंदर क्या अभी तो आपको नहीं मालूम ना, राइट? इस फाइल के अंदर क्या है आपको नहीं मालूम until unless you run this program या उसको खोल के ना देखो। बट अभी अगर मेरे को डेटा और प्रोग्राम एक साथ समझाना है तो इसके लिए डेटा लाइंस यूज करूंगा। तो डेटा लाइंस क्या बोलता है कि डेटा लाइंस आप जब यूज करोगे तो इट सर्च डेटा इन योर कोड विंडो और योर प्रोग्राम एडिटर। ये फिर इट डज नॉट एक्सपेक्ट दिस कि ये कोई फाइल का फिजिकल लोकेशन होगा, ये फिर आपका डेटा इसी में ढूंढेगा। यस, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। So, कार्तिक क्वेश्चन क्या है, इफ आई चेंज द डेटा लाइंस एंड देन अगेन रन द कोड विल इट रिप्लेस। तो अगर आप ये बोलो कि इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूंगा, राइट, तब रन करोगे, यस इट विल चेंज द वैल्यू। ठीक है, अब यही प्रोग्राम मैं आपको अपने वाले साइज पे दिखाता हूँ। मेरा वाला साइज इज नथिंग, इट इज अगेन सेम, वही प्रोग्राम विंडो है, वही लॉग विंडो है, वही आउटपुट विंडो है। यस कार्तिक, सो वंस यू ओवरराइड इट, इट ओवररिटन। देख, सो प्रोग्रामिंग के अंदर गाइस हमेशा एक चीज रखें, कंट्रोल जेड करके कोई चीज होती नहीं है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। Alright, so we have covered this program, and this particular style or this style is known as default style or list input style. So people who want to go for such certification, for them this particular style is known as input. This input style, list input style. All right, now
you may have a question like this, sir, what if my data is given like this, Ram Kumar Yadav, Shyam Singh, Sita Kumari. So if I run this program like this, so what I'm saying, that I need to create a data by name of second underscore data. This will go into work library in file. So in place of data lines, we can also use cards और data lines 4 keywords. तो data lines जो मैंने ऊपर यूज किया है, इसके दूसरे नाम भी है, कार्ड्स नाम भी है और डेटा लाइंस 4 भी नाम है. तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इन तीनों में से, बट वो फिर सेम होना चाहिए, जो ऊपर लिखा वो नीचे ही होना चाहिए. Alright, so if I run this program, what are the instructions I'm giving to SAS? That you need to read a variable by name of name, and the data which you will receive for this variable is character, and then age. This is a numeric data. Salary again a numeric data. All right. So if I submit this program, and we'll go to work library and open this data. Oops, this is giving me not, it is giving me the output which is not desired, or this is not as per my thinking कि मैं just सोच रहा हूँ ऐसा data तो नहीं आया. All right, so let's identify what is the reason behind it. If you look at your program and the output, no Anchal, no Chal, sorry. What is proc keyword? So proc keyword means procedure, Aman. So how this program will execute? It will execute line by line and observation by observation. So line this, observation this. So this variable require 8 character data. So I have started reading it RAM, and then we found this delimiter, right? What is this? Delimiter. So this is or space is a default delimiter in SAS. In almost in most of the programming language, space is a default delimiter. Delimiter मतलब जो सेपरेट करता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड को. Even in your English, plain English, space is a default separator or delimiter. For example, when I'm saying my name is Jitendra, so my and name के बीच में एक स्पेस हम डालते क्यों? ताकि मालूम चले कि my अलग नेम अलग वर्ड है और नेम अलग वर्ड है. सिमिलरली सैस को भी ये कैसे मालूम चलेगा कि राम अलग वर्ड है और कुमार अलग वर्ड है, या यादव के बाद जो स्पेस आ रहा है उसका 25 ये दोनों अलग है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस. ठीक है, तो स्पेस को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट डिलीमीटर. बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर क्या है? स्पेस. तो इसका मतलब होता है कि ये एक अलग डेटा पॉइंट है, ये एक अलग डेटा पॉइंट है, ये एक अलग डेटा पॉइंट है. तो सैस ने तो अपना काम किया, इसने नेम में गया, राम रीड किया, फिर स्पेस मिल गया. इसका मतलब नेम वाला डेटा पूरा हो गया. नाउ सेकंड, एज के लिए डेटा पिक करूंगा. एज के लिए डेटा पिक करने का तो क्या मिला? कुमार. And Kumar is a character data and age is a numeric variable. So data type mismatch, you will see a dot over here. सैलरी में गया, सैलरी में क्या मिलेगा? स्पेस के बाद यादव आ गया. अगेन डेटा टाइप मिसमैच, अ डॉट. ठीक है, इस लाइन बाय लाइन मतलब इस लाइन का काम पूरा, अगली लाइन में गए हम.
श्याम, हाँ नेम है, न्यूमेरिक सॉरी कैरेक्टर डेटा है, कैरेक्टर डेटा विड्थ भी 8 है, मिल गया, रीड कर लिया। एज डेटा टाइप मिसमैच, न्यूमर वेरिएबल है, कैरेक्टर डेटा है, तो मैं इसको मिसिंग वैल्यू असाइन कर दूंगा। देन आई वेंट टू सैलरी, सैलरी के लिए मेरे को क्या मिला 30, और मैंने 30 लिख दिया, मेरा डेटा पूरा हो गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, फिर से वही सीता कुमारी ब्लैंक एंड सैलरी में 25 हो गया, दैट्स इट, मेरा डेटा पूरा, मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया, दैट्स इट। बट दिस इज नॉट द आउटपुट वी आर expecting, right? We want to read this entire text in one go. So what we will do, we will use a second input style which is known as column input style. So in this style, we define the width of the column. So if I go up to here, do you see this 15? मेरे कर्सर की तरफ देखना, अगर at the bottom, right hand bottom. So do you see the column 15? So this is the width of my column. So I will write 1-15, मतलब 1 से लेके 15 तक कॉलम विड्थ है इसकी, एंड दिस इज द मैक्सिमम विड्थ, राइट? इसके बाद तो कुछ है नहीं नेम वाला डेटा, सो आई हैव टेकन दिस विड्थ एंड आई विल सबमिट दिस प्रोग्राम। ओके, जब भी ओपन होगा तो कभी रन नहीं होगा, तो इसे क्लोज कर दिया मैंने इसको। नाउ यू हैव द डिजायर्ड आउटपुट। क्योंकि आपका 1 यहाँ से चालू होता है, अमन, आर से पहले 1 है देखो कॉलम, क्या कर्सर ब्लिंक कर रहा है, 1 लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो 1 का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब जैसे यहाँ मूव कर जाएगा तो वो सेकंड स्पेस हो गया, सेकंड लोकेशन। डन हो गया सबका? एनी क्वेश्चन? Okay, so we have covered list input style and column input style. Now I have already written this incorrect program just to show you. If I read this program, so I have the name, age, salary, and I have a date of birth. How I can read a date of birth? Date of birth हम किस तरह से read कर सकते हैं, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। ये इनकरेक्ट है या सही है? मैं इनकरेक्ट लिखा है, doesn't mean कि इनकरेक्ट ही हो। So if I run this program, yes, this will run successfully and I am able to create my data like this. So what is incorrect, Karthik, in this?
ये तो डेटा रीड हो गया पूरा, देखो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस प्रोग्राम? तो कार्तिक, आपको जो ये वैल्यूज है ना, वो कॉलम में अरेंज करनी पड़ेंगी, राइट? अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा ना, तो वो फिर वो 15 तो यहाँ पे हो जाएगा, वो यहाँ इसको भी रीड कर लेगा। सर डॉलर साइन क्यों? इसको अगर मैं रीड करूंगा तो सैस की डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है? न्यूमेरिक डेटा के कैरेक्टर डेटा है? एज और सैलरी के बीच में नहीं आएगा, क्यों? वहां क्यों आएगा? डेट ऑफ बर्थ है ना। एज और सैलरी तो अपना नॉर्मल न्यूमेरिक डेटा है, वो तो रीड हो ही जाएगा। रीड मेरे को डेट ऑफ बर्थ करना है। डेट ऑफ बर्थ में क्या, किस तरह का डेटा है? ये डेटा न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है? एंड आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। इज दिस ए न्यूमेरिक डेटा और कैरेक्टर डेटा? तो सबने बोला दिस इज कैरेक्टर डेटा। तो 4 लोगों को पता है। हितेश ने बोला हाउ न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक कहाँ से लग रहा है? हितेश और कार्तिक है। तो बाकी लोग जो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेट मी स्टार्ट कॉलिंग आउट देयर नेम्स। शशांक, ओके, आपका आंसर है निताक्ष, वेरी गुड। ओके, व्हाट डू यू थिंक संचित? रूपाश्री, व्हाट इज योर थॉट? इज दिस a character data or a numeric data? Sanchit, can you hear me? Okay, thank you, Rupa. Sorry, I missed that. Parth, character या numeric? Okay. ओके, सो किसने रह नहीं आंसर किया? आंसर ओके, अच्छा सॉरी, अच्छा या तो बीसी लोग थे। अच्छा सॉरी, आई एम स्टिल इन द अदर बैच जहाँ में 40 रिस्पॉन्सेज आते थे। कोई नहीं। सो अगेन Siddharth got it. Okay. So yes, this is a character data, right? However, we want this to be read as numeric data. As per SAS definition, this is a character data. However, we want to read it as numeric data. And why numeric data? Because date is always a numeric. We want date to be a numeric so that we can do mathematical operation. Agreed? बात समझ में आई? डेटा भी है तो कैरेक्टर, लेकिन मेरे को ये चाहिए किसमें?
नंबर्स में न्यूमेरिक, तो मेरे अगर इसको एज कैरेक्टर रीड करूंगा, दिस विल नॉट सॉल्व माई पर्पस। क्यों? कल को अगर कोई मेरे से पूछता है कि नंबर ऑफ डेज सिंस यू वर बोर्न, तो आप क्या करोगे? टुडे माइनस डेट ऑफ बर्थ करोगे, दिस ऑपरेशन विल नॉट बी डन। लेट मी शो यू। In log you will see one error. Character value will come to numeric value at the place given by 4234. And right, and do you see over here underscore error underscore 1 underscore n underscore equals to 1, यानी पहली लाइन में ही आपकी एरर आ गया। तो दो ऑटोमेटिक वेरिएबल की जो मैंने बात की थी लास्ट टाइम की एरर अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर 1 आएगा और उस लाइन का नंबर लिखा हुआ जाए जिस लाइन में एरर है। तो कार्तिक, ये आपका जो क्वेश्चन हाउ टू चेक द डेटा टाइप मैं समझ नहीं पाया। कहाँ चेक करना है डेटा? डेटा तो आपके सामने है, ये दिख रहा है यहाँ पे। चेक कहाँ करना है? तो बाय डेफिनेशन हमने बात की थी ना लास्ट टाइम कि अगर कोई डेटा जो 0 से लेकर 9 तक है e टू दी पावर के फॉर्म में या जिसके अंदर डॉट है, वो तो वो न्यूमेरिक डेटा है, बाकी सब कुछ कैरेक्टर है इसके अंदर। ओके, तो बात समझ में आ गई कि डेट ए पॉसिबल, कैन यू एक्सप्लेन द पोजिशनिंग अगेन? ओके श्योर। Yes, so now the next question is how to read this type of data into numeric data or this into date। ऐसो कैसे बताऊं कि ये डेट है मेरे लिए, राइट? So before I move on to that topic, let me just first explain the positioning. So Hitesh, starting from 1 to 15 is my name variable, and that you can see over here. Just right at the end of my screen on the right hand side. Similarly, if I want to read it, so do you see that this is 26 now and it goes up to 35. Okay. All right, so give me a second. Let me open my PPT to make you understand this topic. So the question which Aman asked, how to read date as numerical value. So this question is applicable for any data type, right? Which you want to read in SAS from a different format. So the keyword which we use for that, or the instruction which I need to pass on to SAS, is with the help of in format. So an in format is an instruction that SAS uses to read data values. All right. Now next thing, SAS in format has the following form. If your in format is character, you use a dollar symbol. अगर मेरा कोई इन फॉर्मेट कैरेक्टर वैल्यूज के लिए है, विच मीन कि डेटा मेरा न्यूमेरिक में उसको कैरेक्टर में रीड करना है,
तो मेरा जो फॉर्मेट इन फॉर्मेट होगा, कैरेक्टर इन फॉर्मेट होगा, वो हमेशा डॉलर सिंबल से स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय द इनफॉर्मेट नेम, राइट। एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर टोटल विड्थ ऑफ द फील्ड, उस फील्ड की कितनी विड्थ है जो आप रीड कर रहे हो। डॉट, राइट, डॉट इज अ रिक्वायर्ड डिलिमिटर, डॉट आपको हमेशा लिखना ही है। Guys, give me a second, let me check. Hello. Yes. Thank you. Hello. Sorry for interruption. Okay. So, yeah, I'm coming to it. So, informate is an instruction. जैसे आपको कीवर्ड थे ना, डेटा का इंस्ट्रक्शन था कि डेटा रीड करोगे आप, इन फाइल से, इस फाइल से रीड करोगे इनपुट। वैसे एक इन्फॉर्मेट, राइट, भी एक आपका इंस्ट्रक्शन है SAS के लिए, या स्पेशल कीवर्ड है। और उस कीवर्ड का कुछ कैरेक्टर है, वो है कि अगर वो कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज होगा तो डॉलर से स्टार्ट होगा, फिर उसका नाम होगा, फिर विड्थ होगी उसकी, कितना डेटा रीड कर सकता है वो, फिर डॉट इज मैंडेटरी। अगर आपका इन फॉर्मेट में कोई डेसिमल के बाद भी वैल्यू है तो वो आप इस डॉट का लिख सकते हो, राइट। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल that will clarify the thing. So for example, if I have the data like this, right, and I have a data like this, so this is a numeric data I'm reading, though I don't require it, just for the sake of letting you know I'm writing this. The informant would be 8.0, which means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And if I want to include this, then 8.0. Otherwise, it can be 7.0. However, if I have a data 1, 2, 3, 4.567, the informant would be 8.3. The total width is 8, and I have 3 values after decimal. So the SAS data value will be this. Now you might not require this, but yes, the below example is a classic example which will clear your all the doubts. Now you have this data, like this is given your salary, this is your salary, right? And it has comma, and you all know comma is a special character, right? So comma is a special character, and salary cannot be character. कल को बोनस कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, राइट और रॉन्ग? तो आपके आगे चैलेंज क्या, आपको तो ये एज ए नंबर रीड करना है। So to read this as a number, you will use one one functionality of SAS, which is informate, right? And this informate is comma 6.0, 6.0. Why comma? Because this is a comma, and comma is a predefined name. इस SAS ने डिफाइन किया कि जब भी आप इस तरह का डेटा रीड करोगे तो उसके इन्फॉर्मेट का नाम कॉमा होगा, right? Now 6 is the total length, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dot is a mandatory thing, right? Dot आपको लगाना तभी मालूम चलेगा कि ये आपका नॉर्मल नेम नहीं है, ये इनफॉर्मेट है। And then 0 means there is no value after decimal. अगर आप 0 नहीं भी लिखोगे तो भी fine. Now questions.
No question. Do we have to different format name for different character? Yes. So we have different format where okay, it's a bit confusing. Okay. Please ask as many questions as you can ask, right? And there is no question which is a waste, a stupid question or something like that, right? जो भी दिमाग में आ रहा है अभी बोल दो. I will explain it. Okay, so let me start with from the Manish Kumar's question. So yes, we will calculate or we will count every character which are there in our value. हमारी वैल्यू के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा वो हमें सब हमको वो सब काउंट करना है, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो. Right? Second thing, so informant is nothing, these are special instruction. जहां मेरे को सेस को जाके बताने अब आप अपने डिफॉल्ट मोड से हट करके कुछ अलग करो. डिफॉल्ट मोड के हिसाब से सिर्फ दो ही तरह का डेटा होता है, न्यूमेरिक और कैरेक्टर. और 1 0 से लेकर 9 तक का डेटा है तो न्यूमेरिक हो गया, बाकी कैरेक्टर हो गया. लेकिन अब मेरे सामने चैलेंज है कि ये जो डेटा है ये मेरे को न्यूमेरिक चाहिए लेकिन मिल किस में रहा है, कैरेक्टर में. So I will take Karthik question a little. I will answer this question a little later. What about the commas? मतलब मैं समझा नहीं रूपा. What about the comma? तो कॉमा मेरे डेफिनेशन हिसाब से तो कैरेक्टर है ना. राइट. तो अब इसको और मेरे को ये डेटा चाहिए नंबर्स में. सैलरी तो नंबर्स में चाहिए ना, कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा. तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को दिया गया डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट में और मेरे को रीड उससे एज ए नंबर करना है. जो हमारे वाले एग्जांपल में भी क्या है, डेटा मेरे को दिया गया है कैरेक्टर फॉर्मेट में लेकिन रीड मेरे को एज ए डेट करना है. सिद्धार्थ आता हूँ, इस क्वेश्चन पे आता हूँ, डोंट वरी. इन सबसे क्वेश्चन का आंसर करूंगा. राइट, पहले जो समझा रहा हूँ पहले वो समझते हैं, ठीक है. वन ठीक. रूपा क्लियर हुआ ये? पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि ये क्यों चाहिए मेरे को. तो अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर क्लियर है? ओके. ओके, सो रूपा इफ यू आर आस्किंग अबाउट द आउटपुट, देखो आउटपुट में अगर मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है. एक बार इन्फॉर्मेट क्लियर कर लूं. तो आउटपुट इज डिफरेंट. अभी मैं क्या इनपुट पे बात कर रहा हूँ, मैं अभी इनपुट लेके आ रहा हूँ. आउटपुट भी कैसे भी दिखा सकता हूँ मैं, उस पर मैं जैसे फॉर्मेट से समझाऊंगा तब बताऊंगा उस पर. अभी मेरा जो कंसर्न है कि डेटा सेट के अंदर कैसे लेके आऊंगा, कि दूसरे फॉर्मेट का डेटा दिया और दूसरे फॉर्मेट में रीड करना है. राइट. सो फ्यू मोर एग्जांपल. अगर कैरेक्टर इन फॉर्मेट है तो इफ आई एम राइटिंग $8 डॉट मीन्स आई नीड टू रीड 8 कैरेक्टर डेटा फ्रॉम दिस इनपुट डेटा. तो दिस विल रीड लाइक दिस. वो सामने से ट्रेलिंग ब्लैंक लीडिंग ब्लैंक हटा देगा. तो इन फॉर्मेट का क्या नाम हो गया, $8 डॉट. नाउ देयर इज another variable, another information which is known as char. तो अब चूंकि कैरेक्टर इन फॉर्मेट है तो उससे हमेशा डॉलर से स्टार्ट होगा, फिर उसका नाम आया, फिर उसकी विड्थ आई, और डॉट तो मैंडेटरी है. तो व्हेन यू रीड यूजिंग दिस इन फॉर्मेट इट विल प्रिजर्व योर लीडिंग ब्लैंक्स एज वेल.
ऑलराइट, अब आते हैं डेट वाले पे। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डेट वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड, ये सबको पता है, ये हम लोगों ने बात की थी कि अगर मेरे को डेट इस फॉर्मेट में दी हो, राइट, लेट मी ओपन अ ड्राइंग टूल, गिव मी अ सेकंड। राइट, अगर मेरे को डेट इस फॉर्मेट में दी हो, दिस इज अगेन अ कैरेक्टर वैल्यू, बट अगर मैं उसमें एक इन्फॉर्मेट यूज करके जब सैस के अंदर स्टोर करूंगा तो वो एज अ नंबर स्टोर होगी, और इस नंबर को मैं वापस से किसी और दूसरे फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकता हूं। ठीक है, सो दिस इन्फॉर्मेट हेल्प्स मी टू कन्वर्ट a different data into the SAS defined data set. तो डेट के कुछ इंफॉर्मेट समझते हैं। तो इफ दिस इज माय डेट 10-29-2001, तो इसका फॉर्मेट इनफॉर्मेट होगा MMDDYY 10 डॉट। 10 डॉट क्यों? क्योंकि ये लेंथ 10 है, डॉट मैंडेटरी है। MM पहले क्यों? क्योंकि ये मंथ पहले है, बाद में डेट है। लेकिन कन्वर्ट होकर के सैस में क्या स्टोर होगा? 15,277। और इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ डेज बिटवीन 1st Jan 1960 एंड 29th October 2001। सिमिलरली अगर डेट इस फॉर्मेट में दिए तो मैं वहां 10 डॉट की 8 डॉट कर दूंगा। इनफॉर्मेट तो वही है अभी भी। इस इनफॉर्मेट के लिए तरीका है डेट, DATE लिखूंगा 9 डॉट, और अगर ये 01 दिया होता तो ये मैं 7 डॉट कर देता। एंड दिस इज DDMMYY फॉर्मेट, इनफॉर्मेट। Any question on this? Okay, now let me 3 टाइप्स का, मैं समझा नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा करिश्मा। October 2001, yes, so the informant for this type of data is date 9. So the informant name is DATE, date. The informant name for this is MMDDYY. The informant for this is DDMMYY. Aman, I will share you the, did I share you? Okay, since I do not have your email address, I will share you the book from where I have picked up all this material, right? I think I told you in the last session. And I will tell you on which page you will find this material. So this is the, ये बुक के अंदर दिया गया है, ये बुक से उठाया गया है, राइट? तो बुक के अंदर ये पेज है। ओके, सो सिद्धार्थ, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, राइट? तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो मैंने आंसर नहीं किए थे। सिद्धार्थ का था एक क्वेश्चन पहले, और एक था सिद्धार्थ का ही था, एक कार्तिक का था। सो कार्तिक के डेटा में 1 रो हो या 1 मिलियन रो हो, जनरली जो हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं जहाँ पे मेरे मशीन का डेटा होगा। ऐसा नहीं हो किसी यूजर ने एक एक्सेल बनाई और उसमें एक लाइन में कुछ लिखा है, दूसरी लाइन में कुछ लिखा हुआ है। तो द डेटा विल फॉलो ए सिमिलर पैटर्न, फर्स्ट थिंग, राइट? अगर हर लाइन पे अलग होगा ना तो कभी नहीं होगा डेटा, वो डेटा यूजर डिफाइंड होगा। वो फिर उसी को पकड़ा देना कि भाई तुम ही ठीक करके दे दो मेरे को। प्रोग्रामिंग से ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ पैटर्न होगा, मान लो कि हर 4th रो या हर 2nd रो ऐसा है, वी कैन स्टिल डू दैट, ठीक है? बट मैं अगेन डेटा शुड हैव सम पैटर्न, ठीक है? तो दिस इज
your answer. Now the second question was for, let me go to सिद्धार्थ, जो आपका पहला क्वेश्चन था, मैं दूसरा, और डेटा इज नॉट क्लियर, ओके ये तो नहीं है, चलो दूसरा कौन छूट गया? सिद्धार्थ एक पहला भी क्वेश्चन था आपका, वो ढूंढ रहा हूं मैं. So how will we count commas in bigger data? So there are two things. डेटा कितना ही बड़ा हो, राइट? अगर फाइल खोल करके आप देखोगे आपको नजर आ जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, पहली चीज. और सेकंड चीज, अगर डेटा कितना भी बड़ा हो, वो फिर से एक ही बात बोलूंगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करेगा, राइट? एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, सेकंड थिंग, एवरी डेटा हैज इट्स ओन डिक्शनरी. उस डेटा की डिक्शनरी आती है जिसमें लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो 1 करोड़ में के फॉर्मेट में है, मिलियंस के फॉर्मेट में है, बिलियंस के फॉर्मेट में. एंड टू आंसर सेकंड क्वेश्चन सिद्धार्थ, दैट हाउ यू विल आइडेंटिफाई, अगर डेटा डिक्शनरी नहीं है देन यू विल रीच आउट टू द क्लाइंट और द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कि भाई ये बताओ ये डेट का फॉर्मेट कैसे स्टोर करा रहे हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो डिसीजन नहीं लोगे ना. Are you satisfied with my answer or if you still have the question? So the number. No. So Siddharth, number of character, yes, हाँ. So उसकी width लिखी होगी कि yeah. So for example, date, data type लिखा होगा date, और उसमें लगा length, some length लिखी होगी वहाँ पे. और अगर फॉर्मेट नहीं हो सकता, फॉर्मेट दिया हो कि इसमें वी आर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन DDMMY फॉर्मेट, अगर नहीं है तो यू कैन रीच आउट टू द क्लाइंट कि भाई बताओ आप डेट स्टोर कैसे करते हो, right? And this is a practical thing, right, which even I have faced. So I was working with one vendor, so, and they were using SQL, however their data was stored in a different format. तब when I reach out to them तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा वो डेट भी क्या नंबर्स थे, तो किसी महानुभाव ने वो डेट ना कन्वर्ट करके ऑलरेडी सेव किए हुए थे. तो जब मैंने उनसे पूछा था एंड दे टोल्ड मी कि ओके दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, तो फिर मैंने उसके अंदर जितना 1960 से डिफरेंस था ना डेटा, उतना उतना ऐड कर दिया. तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 1959, मान लो उन्होंने 1 जनवरी 1959 से स्टोर किया हुआ है, वो जीरो माना है, तो मैंने उसमें 365 सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आया था मेरे पास उस हिसाब से कन्वर्ट करके सैस में स्टोर कर लिया. तो यू विल गेट योर इन्फॉर्मेशन राइट इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू द राइट पीपल. फ्रॉम वेयर वी गॉट द डेट वन, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने शायद लास्ट टाइम बताया. इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अराउंड अलग अलग कहानियां हैं. पहली कहानी है, कोई बोलता है कि मिस्टर जिम गुड नाइट का बर्थडे है इस दिन है, कोई बोलता है कि इस दिन शायद सैस की शुरुआत हुई थी. बट द ट्रुथ इज कि ये उस प्रोग्रामर को मालूम है जिसने ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी, और वो अभी तक किसी को नहीं पता, राइट? बट हमारे लिए क्या, ये बेस डेट है जिसका मतलब जीरो, हमारे डेट के स्केल पे इसका मतलब जीरो है. दैट्स इट. यस, अगर डेट इस तरह से दी हुई है अमन, जैसे आपने देखा 10/29, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि 29 कभी मंथ नहीं हो सकता. तो दिस इज बाय डिफॉल्ट MMDDYY फॉर्मेट. लेकिन एक कैविट अभी और दूंगा अमन, अगर एक डेट ऐसी दी है बाकी डेट में 29 नहीं है या 15 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है सेकंड प्लेस पे, तो हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है वो गलत डेटा हो. तो यू शुड अगेन गो बैक टू योर क्लाइंट कि भैया बता दो, मेरे को कुछ अलग अलग नजर आ रहा है यहाँ पे. So far so good. Any other question?
चलो इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो ओके, सो लेट मी ओपन SAC अगेन। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट, कौन बताएगा जल्दी से। तो इन फॉर्मेट क्या होगा, सॉरी इन फॉर्मेट क्या लिखूंगा, यस ओशिन, इस डेट से वो जीरो, इस डेट को जीरो मानते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करना चालू करता है। यस करेक्ट, इन फॉर्मेट, कौन बताएगा जल्दी से। MMDDYY 10 डॉट, कार्तिकेय DD MMYY 10 डॉट, हा। So again this is confusing, right? DD लिखो MM लिखो, so you will ask the subject matter expert, and in this case the subject matter expert is me, right? So this is MM first, DD second. Yes, so this is MMDDYY format, in format. And this style is known as format input style. जहां पे हम इनफॉर्मेट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट इनपुट स्टाइल। सो ये तीसरा स्टाइल हो गया आपका। तो फिर लुक एट द प्रोग्राम, नेम में मैं डायरेक्ट क्या लिखा, $15 डॉट, कैरेक्टर टाइप का डेटा रीड करना है जिसकी लेंथ 15 है। एज एंड सैलरी आर डिफॉल्ट, एज कैरेक्टर रीड होगा। कीवर्ड के बाद मैंने एक इन्फॉर्मेट यूज किया जिसका नाम है MMDDYY 10 डॉट। should I submit this program? Okay, so what you can see over here, सॉरी मैं डेट ऑफ बर्थ का समझा रहा था आपको। हाँ, इसको कमेंट बना, एक सेकंड, इसको कमेंट बनाया तो अब इस पे मैंने बात नहीं की है। तो अच्छा खुला हुआ है तो ओवरराइट नहीं होगा, ओवरराइट करने के लिए मेरे को रन करना पड़ेगा दोबारा से, और ये डन। सो व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ डेज सिद्धार्थ फ्रॉम, नंबर ऑफ डेज कहां से, 1 जन 1960 से, राइट। 1 जन 1960 से इस डेट के बीच में इतने दिन का डिफरेंस है। नाउ रूपा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो कॉमा का क्या होगा, तो आप भी पूछ सकते हो कि इस स्लैश का क्या हुआ। तो अभी आपने डेटा रीड किया है, राइट, तो स्लैश के अंदर इस तरह से स्टोर हो गया। सो देयर आर टू ऑप्शन, एक तो अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, राइट, तो लेट मी प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू, क्या नाम रखा था हमने, थर्ड अंडरस्कोर एंड रन, राइट। तो उसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो CS का काम तो यही है ना, ये प्रिंट हो गया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, आप अपने डेटा को एज इट इज रखो जो स्टोर है, आप उसका फॉर्मेट प्रिंट में आकर के चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल का फॉर्मेट चेंज कर दो टू, लेट्स से अभी सेम रखते हैं MMDDYY 10 डॉट। तो ये आपको प्रिंट आउट में ये चेंज करके दिखा देगा। लेकिन अभी भी आपका डेटा, लेट मी शो यू द डेटा, चेंज नहीं हुआ है, डेटा अभी भी वही है, सिर्फ आपका डेटा का डिस्प्ले चेंज हो गया। इफ यू रिमेम्बर मैंने एक्सेल में आपको ये करके दिखाया था।
इन फॉर्मेट से क्या हुआ, इस तरह का डेटा मैंने सैस में कन्वर्ट किया, और फॉर्मेट से क्या किया, जो सैस का डेटा था वो यूजर डिफाइंड फॉर्मेट में या जैसा चाहिए था वैसा मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको मैं किसी और फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकता हूं, लाइक डेट 9 डॉट, तो ये तरह से प्रिंट करेगा, लेकिन अभी भी मेरा डेटा सेम ही है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। ये बात क्लियर हुई, इन फॉर्मेट का काम समझ में आया। डेटा इन करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और फॉर्मेट का मतलब है डेटा आउट करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। सिर्फ करिश्मा को समझ में आया, बाकी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इनफॉर्म मतलब जब डेटा इन कर रहा होता हूँ सैस के अंदर, राइट, तो उसको जो उस कीवर्ड सेम ही है, दैट इज अ डिफरेंस कहाँ पे, यूजेज में। अगर फॉर्मेट में यूज करूंगा तो उसे फॉर्मेट बोलूंगा, अगर रीड करते समय यूज कर रहा हूं तो इनफॉर्मेट बोलूंगा। राइट, ओके जी। तो एक क्वेश्चन था किसी का जो हम कर गया, एंड दैट क्वेश्चन वाज फॉर दिस $15 वाला, राइट। So again, I either I can read this name as an informat or as column width. मैं कॉलम इनपुट स्टाइल से भी इसको रीड कर सकता हूँ, मैं इसको इनफॉर्मेट से भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इनफॉर्मेट का भी तो मतलब ये होता है ना कि आपको डॉलर वाला डेटा रीड करना है, यानी कैरेक्टर डेटा रीड करना है, कितना विड्थ रीड करना है, ये तो होता है ना, ये डेटा रीड करना है एमएमडीडी वाई 10 विड्थ रीड करना, वही तो काम है, वही काम इसका है। क्वेश्चंस प्लीज। अंकुर के क्वेश्चन का आंसर कर, अंकुर ही गायब हो गया। Manish, the difference is 2.5 lakh rupees. तो जो सैस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, और जो आप ब्राउजर में यूज कर रहे हो वो फ्री में। राइट, सो देर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस कि ब्राउजर के लिए मेरे को इंटरनेट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट। ये सब काम करके आपको दिखाने के लिए, सॉरी, राइट, कोड ही तो लिख रहा हूँ, आउटपुट भी आउटपुट में आ रहा है। ओके, सॉरी। मैं लाइटर नोट पे इसलिए बात कर रहा हूँ तो कि आप लोग भी मेरी बातें सुनते सुनते बोर हो चुके होंगे, थोड़ा सा लाइट किया जाए माहौल को, एंड आई डिडंट वांट टू हर्ट यू, मतलब तो ओके। ओके, हितेश का क्वेश्चन, इफ वन नेम इज 5 कैरेक्टर लॉन्ग एंड द अदर इज 20, व्हाट विल बी राइट इन फॉर्मेट। आते हैं हितेश, आएंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक साथ साथ हैं सारे लोग, चलो अब आगे चलते हैं। सो जो थर्ड स्टाइल हमने सीखा वो दैट वाज अ फॉर्मेट इनपुट स्टाइल, राइट। Okay, so we are done with this. Let me open another program. And the last input style which we are going to learn is mixed input style. So the fourth input style is mixed input style. तो फर्स्ट थ्री क्या क्या है बताओगे, जल्दी से टाइप करके बताओ। पहली थ्री इनपुट स्टाइल, और तीनों एक साथ लिखनी है, ये नहीं तीन अलग अलग बार में लिखो।
नेम ऑफ ऑल थ्री इनपुट स्टाइल, तो टेस्ट में यहीं से लेना चालू कर दिया आपका। ओके, सिर्फ अमन को ही पता है। कार्तिक एक बार में लिखना है तीनों, लाइन, इन्फॉर्मेट एंड यस ओशिन। और स्क्रीन पे इसीलिए डेटा लाइन से इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस कोड, जब मैं आपको एक कोड शेयर कर दूंगा, सिंपल पेस्ट करके आप रन कर सकते हो। चलो जी, अब ओशिन ने क्वेश्चन पूछा तो करके दिखा देते हैं ये लोग। कंट्रोल सी किया और नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अलग से दिख सके। क्या करो, उसको रन कर दो। ये चाहिए था ना, आउटपुट तो सेम ही देगा। यस, सिर्फ चार लोगों को पता है, अमन, संचित, कार्तिकेय, अच्छा अमन ने दोबारा लिखा है। तीन ही लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग बहुत शर्मीला ग्रुप है, लोगों को नाम गलत से बुलाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। लाइन, कॉलम एंड इनफॉर्मेट, ओके। अभी तक सही आंसर किसी का नहीं आया मेरे पास, लिखो 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 सारे लोग, फिर नहीं मैं नाम से बुलाऊंगा। क्योंकि बहुत से लोगों की तो अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही होगी, है ना। कहाँ 11 बजे उठा करके क्लास में बैठा दिया। ओके, तो कुछ लोग जो आशा, क्या बोलते हैं, बाबा जी के प्रवचन सुनने आए हैं, उनका नाम बुलाना चालू करूंगा फिर। आंसर्स प्लीज। अभी भी कम से कम 8 लोग हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। गलत आंसर क्या, गलत ही तो होगा। और अब तो ऑनलाइन में और भी फायदा है, कोई सामने है नहीं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी टेल द राइट आंसर। कॉलम इनपुट स्टाइल, लिस्ट इनपुट है, फॉर्मेट इनपुट, वेरी गुड। A big round of applause to Siddharth Kaushik. The right answer is this: list input style, column input style, and format input style. So सब लोग सही आंसर देख लो स्क्रीन पे जो सिद्धार्थ ने लिखा हुआ है। And the fourth one is your mix input style. अच्छा, ये थोड़ा बोरिंग सा है ये गो टू मीटिंग, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं मैं सिद्धार्थ को वर्चुअल चॉकलेट दे सकूं। जूम में बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। Alright, so let's move on to the next style, which is mixed input style. So mixed input style is nothing, it is the same. The only difference that in one piece of code we are using all three styles. Like this is my column input style,
this is my list input style, and this is my format input style, and this is known as mixed input style. So quickly ये वाला प्रोग्राम सब लोग अपने सिस्टम पे ट्राई करो, एंड आई एम गिविंग यू 5 मिनट. 12:47 हो रहे हैं, 12:52 तक कंप्लीट दिस. आई विल, मैं आपके सिस्टम के अंदर आकर के चेक करूंगा प्रेजेंटर बना करके. सो सबको करना है ये. डोंट थिंक कि मैं नहीं करूंगा तो सर को पता नहीं लगेगा. मैं सबको किसी का भी सिस्टम चेक करूंगा रैंडमली. रोहित शर्मा देखो, यस द फोर्थ वन. रोहित के अलावा और किसका एक्सेस नहीं है? रोहित प्रोसेस सही से फॉलो किया था पूरा? अगर किया था और एक हफ्ता हो गया तो आई विल अप्रिशिएट, आप अपने स्पैम में जाके चेक करो. आ चुका होगा इतना दिन में, एक हफ्ते के अंदर आ जाता है जनरली. किसी को कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा? Hitesh, I am still facing issue with the name length correction. So, Jitendra, what is happening is that for the column one that you used, I suppose, kept a lot of spaces in between the first name and the last name. You can take it around like 15 or 18 spaces. So when I try to put that $1 to 20, maybe suppose the last character is taking 20th space, so 1 to 20, then what is happening is that the other column values like the age and salary is coming in the first column itself for the other remaining names. And when then I have to manually delete all the spaces and to just get them into column. Okay, so Hitesh, just decide what would be the format of your data, right? So you cannot have a different data length in one column and a different data length in second column. For example, this Ram Kumar, this particular column, right? This
it has a length till up to here. If I'm only giving a data up to here, it's my wish, but total length is up to here, which is 25 column, or sorry, 18. The width of my this particular column is 18, and within this 18 you need to enter your data. So basically, the column space or the age will start only from the 19 for all the 19, values. yes, Suppose we have for thousands yes, of records. yes. Sorry, Jitendra, you were saying something? Yes, it should start from the 19 only. And then if in that case, if we see that suppose the space for 6,000 and 5,000, so suppose the salary for the first row is starting from maybe the 30th space, and for the second one it is starting from the 29th. So in that case, won't that position effect? So just just giving a small example here. So Hitesh, I will come to a different scenarios. So again, the programming which I'm teaching, it is considering one fact in that we are handling machine data, right? एक्सेल का डेटा वो ऐसा नहीं मैं हैंडल कर रहा कि किसी यूजर ने डेटा बनाया खुद से, एक रो में कुछ लिखा, दूसरे में कुछ लिखा, तो उस सिनेरियो को मैं कैटर करने के लिए प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहा हूँ. I am learning programming from a perspective and I have to handle a big data that is being generated by the machine. If that is even some user generated data, तो यूजर भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा एंटर कर रहा होगा. दैट सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन प्रोग्राम इन द बैकएंड जिसने पहले से उसकी लेंथ और विड्थ डिफाइन कर रखी होगी. तो अभी तो हमारे पास लिबर्टी है ना, अभी तो लिबर्टी है, जैसा मर्जी टाइप कर लो, पर ऐसा होता नहीं है. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल. लेकिन सिंस हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो कैसा होगा, वैसा सिनेरियो होता नहीं है प्रैक्टिकली. Okay, got your point. So basically, you are saying that the data might be structured only. यस. और अन्य थोड़ा जब मैसे आएगा ना, मैं आगे जो सिनेरियो बताऊंगा वो सारे सैस हैज ओवर 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसके बाद दे हैव कम अप विद दिस ऑल दिस स्टाइल्स, ऑल दिस फंक्शनैलिटी. तो उनको 40 साल में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो फिर हमें ऐसा नया क्या मिलेगा? Yeah. राइट. Okay, got you. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम. सो सबका हो गया. नाउ वी आर वी ओवरशॉट द टाइम. सो लेट मी सी. अच्छा, कौन अपना तो मनीष सैस इंस्टॉल नहीं करना, राइट? पहली चीज आपको एक आईडी क्रिएट करनी है. तो मैंने उसका प्रोसेस बताया होता पिछले वीडियोस में जाकर के, तो प्लीज रेफर दो उस वीडियो. तो वो आपको ईयरली एक्सेस मिलेगी और आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है. चलो, कार्तिक ने तो बोल दिया कि जी मेरा डीओबी और नंबर ऑफ डेज नहीं आ रहा. अब सारे लोग बताओ किस किस को एरर आ रही है. तो वो आधी क्लास का प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ होगा, गारंटी है. तो ईमानदारी से बता दो नहीं रन हुआ, क्या हो गया उसमें? राइट. सो 40 लोगों को सही, मतलब ये जैसा जनरल बट द थिंग इज वैल्यू शुड इन सेम ऑर्डर, मतलब नहीं आ रही, राइट? इन आउटपुट, ओके. अचल जैन का तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रीड हुआ. ओके, देखो, नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली, वेरी गुड. So when I'm saying something, I have a at least 5 years of experience of teaching this particular program, and I know what percent of people are facing challenge, what kind of challenge they are facing. ठीक है. So let's come to the solution. आपकी स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है,
I am sharing this data with everyone, right? In your chat. Please paste it on Word first. And why I'm telling you this thing, I will let you know in a while. सबने नोटपैड पे पेस्ट कर लिया? आपका डेटा ऐसा दिखना चाहिए जैसा भी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर नहीं है तो उसको मैनुअली उसको ठीक कर लो आप। कर लिया सबने? करो करो, जल्दी से करो। डेटा पेस्ट करके ठीक ऐसा कर लो जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, होपफुली सबने कर लिया होगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई विल द बुक विच आई विल शेयर, देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल विच यू नीड टू प्रैक्टिस। तो वहां पे भी होगा, बुक के अंदर जैसा डेटा दिया होगा आपको सेम उसी फॉर्मेट में डेटा दिखना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली रन द प्रोग्राम, राइट? तो इसलिए उसका सबसे बेस्ट तरीका है पहले कॉपी वहां से करना पीडीएफ से, फिर नोटपैड पे पेस्ट करना, एंड फिर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए, तो उसको हमें उस फॉर्मेट में लेके आए जिस फॉर्मेट में बुक के अंदर दिया हुआ है। सो वी विल कॉपी दिस अगेन एंड विल स्टार्ट राइटिंग आवर प्रोग्राम ओवर हियर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। आई हेट दिस, मेरे को ये ना इंटेलिजेंस की वजह से अच्छा नहीं लगता ये, मेरी मदद क्यों करता है ये। इन फाइल लिखूंगा मैं, फिर इनपुट लिखूंगा मैं, फिर एंड देन रन लिखूंगा। अब मुझे पता है कि मुझे डेटा लाइन से डेटा रीड करना है, तो मैं फिर लिखूंगा डेटा लाइन एंड आई पेस्ट माई डेटा ओवर हियर। और यहाँ आने के बाद सेमीकोलन नेक्स्ट लाइन में लगाना है, इधर नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, सेमीकोलन नेक्स्ट लाइन में लगाना है, ठीक है? अब नीचे डेटा लाइन लिखा तो यहाँ पे भी डेटा लाइन लिखूंगा। इनपुट में क्या था मेरा? नेम $15 डॉट, राइट? एज, so my touchpad is very sensitive because age and this salary, and then DOB, which is TDYY 10 dot, and submit the program. ठीक है? If you follow my instruction, 100% people will be able to run it successfully. And done. Oh, very good. I need the confirmation from everyone except Manish and Rohit. I think these two people does not have the access yet. So, okay, Oshin has a question. So answer this question like Oshin, यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। So
अमन, अगर आपने ये प्रोग्राम लिखा है तो आपने शायद डेटा का नाम टेस्ट लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ डेटा पे? डेटा के बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड अंडरस्कोर डेटा या कुछ और लिखा हुआ है? ओके, अपना प्रोग्राम प्रिंट यहाँ चैट बॉक्स में पेस्ट करना। हाँ, तो फिर पूरा नाम लिखो ना, वेब वर्क डॉट थर्ड डेटा, ये लिखो प्रिंट प्रिंट में। प्रिंट में डेटा इक्वल्स टू, ये पूरा नाम लिखो जो अभी आप मेरे को बता रहे हो। सबका हो गया? प्लीज कंफर्म। So, so you can write proc print data is equal to and you want to write a format for this, तो format what keyword use करोगे आप? gob एंड लेट्स से आपको डेट 9 वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप ऐसे लिख दोगे उसको एंड रन कर दोगे। एंड लेट मी रन दिस एंड हियर इज माय आउटपुट। अब यहाँ पे मैं क्या एक बार मैं एक ही चीज दिखा सकता हूँ, इसलिए भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं ध्यान से पढ़ाना पसंद करता हूँ। वेब वर्क में आप जो स्टोर करोगे वो रहेगा, वर्क में जो स्टोर करोगे वो नहीं रहेगा। बाकी आपकी जो होम ड्राइव पे फाइल आपने जो इंपोर्ट करके लेके जाओगे वो रहेंगी। वर्क लाइब्रेरी से, ओके, हाउ टू सेव फाइल फ्रॉम वर्क लाइब्रेरी। ओके, तो वर्क लाइब्रेरी में ना डेटा स्टोर होता है अमन आपका, तो आपको डेटा वर्क लाइब्रेरी से किसी दूसरी लाइब्रेरी में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीक, जहां मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड इन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है ना, तब बात करेंगे इस पे। और अभी के लिए तरीका ये है, आप जा करके ना उसका नाम चेंज कर दो यहाँ पे, जैसे वो अगर आपने वर्क लिखा हुआ है इसके आगे वेब वर्क लगा दो, बस अब वेब वर्क में चली जाएगी। सो यू आर सिद्धार्थ, यू आर गेटिंग डॉट इन योर डीओबी कॉलम। मतलब क्या हुआ कि डेटा रीड नहीं कर पाई हो, राइट? सो व्हाट यू नीड टू चेक, प्रोग्राम पे ये प्रोग्राम शेयर करना है सिद्धार्थ अपना चैट में। एम आई ऑडिबल? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 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 बस। ओके, 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 सब सिद्धार्थ का प्रोग्राम लिख दो। सिद्धार्थ का प्रोग्राम मैंने कॉपी किया, मैंने सिद्धार्थ आपका प्रोग्राम कॉपी किया है और यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ बस।
name, age, salary, DOB. आपने ना एक एक्स्ट्रा वाई लगा दिया है, ये रमिल कर रहा हूँ, इसे हटा दो। एंड कन्फर्म मी। बाकी सब किसी और को अभी भी कोई चले यार, प्लीज डू लेट मी नो। देखो स्टार्टिंग में अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज ये गलती करने की बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो संचित प्रोग्राम शेयर करो। आपको प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहीं पेस्ट करेंगे। So Aman, to answer your question, so it is just like AMAN. So ये डिफरेंस है जो मैंने भी लिखा है आपके अमन। So first अमन 4 कैरेक्टर लॉन्ग है, सेकंड अमन 5 कैरेक्टर लॉन्ग है। ये ना स्पेस देना होता है यहाँ पे एक तो। एक सेकेंड, इसमें स्पेस दो यहाँ पे संचित, ये जगह सेल जगह डेव हो गया। तो अमन ये जो 10 डॉट है ना, तो इसकी लेंथ है ये 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर कल को मेरे पास डेट है, कल को अगर यही डेट है आपके पास इस फॉर्मेट में ना करके इस तरह से है 12 जुलाई 1980, तो अभी लेंथ कितनी है इसकी? कुछ ज्यादा, एक 9 एक्स्ट्रा लग गया है। अभी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो तब मेरे को यहाँ पे पहला तो ये चेंज करना होगा, तो इसको करना डेट 9। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट सी संचित को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं आता हूँ अमन आपके क्वेश्चन में वापस। अमन ये करा आपने, ओके। ये प्रोग्राम है संचित आपका, राइट? तो रन हो रहा है, यहाँ पे डीओ में ब्लैंक आ गया, ओके। सो गो टू लॉग, पहली लाइन पे रहे, यानी कि डीओबी इनवैलिड डेटा फॉर डीओबी लाइन। तो डेटा में कुछ इनवैलिडिटी है, सो लेट्स चेक द डेटा।
ठीक है, एक स्पेस एक्स्ट्रा था जिसके से वो 10 की पता है, यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा था। जब कर्सर यहाँ से होगा तो एक स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद वो जैसे मान लो अभी ऐसे था आपका डेटा, उसने यहाँ से रीड किया, और यहाँ से जब उसने 9 कैरेक्टर रीड करना चालू किया तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 199 कोई ईयर उसको मिला नहीं, इसके लिए वो एरर आ रही थी आपको। करेक्शन वो तो आपके डेटा के ऊपर है, राइट, लेकिन इस केस में क्या था, इस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस था। I got a call from Damini that the other batch is waiting. So अभी किसी को चैलेंज आ रहा है यहाँ तक प्रोग्राम रन करने में? जितेंद्र, थोड़ा डेट को लेके इशू आ रहा है, like when we are trying to run on the format, it is more like trying to test ourselves out few things. तो डेट में क्या It's क्या fine, we चैलेंज can है? discuss it in our next session. It हाँ, is नेक्स्ट fine. सेशन में और सिनेरियोस डिस्कस करूंगा नए नए, so then we will look more comfortable with this, right? So, Sure. all right, But can thank we you. take these things up also? If we have issues in this, can we take this up with you? So just when okay, so अभी ना हितेश कल की क्लास हो जाने दो, उसके Okay. बाद यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर वीक ड्यूरिंग द वीक आपको अगर कोई भी चैलेंज होता है, यू जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल, आई विल आंसर दैट ऑन योर ईमेल। Sure. ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।